In last class, we cover only vector space and some examples of vector space. Okay. Today we cover first vector space. So we start vector space or linear space. Right. So what is vector space? Vector space, or we also say this linear space. इसको linear space भी बोलते हैं, right? So what is the conditions for becoming vector subspace? Sorry, not vector space, subspace. Internal and external compositions depend on different vector spaces. तो ये हमारे पास different है, जरूरी नहीं same हो always. तो vector subspace और linear subspace both are same. We have two names. So we consider a vector space let V over F via vector space and a non-empty first condition, that is non-empty subset of V. Non-empty subset that is W is subset of V is called subspace or linear subspace या vector subspace called a subspace, or we denote that V is a subspace, W is a subspace of V, same as subgroup. Notation is same as subgroup. So what is conditions? If WF is also a वेक्टर स्पेस, यहाँ पर W भी हमारे पास ओवर F जो है वो क्या होना चाहिए, वेक्टर स्पेस होना चाहिए, राइट, विद रिस्पेक्ट टू सेम इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंपोजिशन, सेम इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंपोजिशन ऑफ V. तो यहाँ पर कंपोजिशन हैं वो क्या होने चाहिए, सेम होनी चाहिए. तो यहाँ पर क्या कंडीशन से होनी चाहिए, फर्स्ट दैट मीन्स W इज अ वेक्टर स्पेस, W वेक्टर स्पेस होगा. तो यहाँ पर मेन कंडीशन हमारे पास क्या होगी, W विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इन जनरल इज अ ग्रुप. विच टाइप ऑफ ग्रुप, Abelian group. it must be a abelian group with respect to addition, or we define a different composition denoted by addition. And identity of F product with some W which is a vector is equal to W for all W, right? And a non-empty subset W of V over F, that is a vector space, is a subspace. यहाँ पर आप में बुक में क्या डेफिनेशन मिलती है, यहाँ पर डायरेक्टली आप क्या चेक करेंगे, जिस तरह से हमारे पास ग्रुप में वन स्टेप टेस्ट होता है उसी तरह से यहाँ पर भी वन स्टेप टेस्ट होता है ना, सेम एज ग्रुप. This implies implied by means W1 plus W2, this also belongs in W for all W1 comma W2 belongs to W. This is condition is satisfied for all Wi, and also one more condition, alpha that is a scalar
W1, this also belongs in W. Means scalar multiplication and vector addition must be satisfied for subspace, right? W belongs to W, and for all alpha belongs to F. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? तो यहाँ पर W सब ग्रुप है। W क्या होगा? सबसे पहले वेक्टर स्पेस होगा तो एक ग्रुप बनाएगा सर -1 -1। नो सर, मैं ये कह रहा हूँ W1 -W2 होना चाहिए। यस, W1 -W2 होना चाहिए। ओके, ये नेसेसरी है। यहाँ पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे हमारे पास सब ग्रुप है, मींस उसका इनवर्स के साथ ऑपरेशन करते हैं, जो जैसे सब ग्रुप में करते हैं ए बी इनवर्स, उस तरह से बोल रहे हैं ना? यस सर, यस। तो यहाँ पर देखिएगा, मैंने इसलिए दो पार्ट्स में लिखा हुआ है। यहाँ पर अल्फा नेगेटिव भी हो सकता है, अल्फा में भी नेगेटिव। ओके, ये अल्फा नेगेटिव होगा तो यहाँ पर ये एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर W2 है, दैट मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव, इट्स डिपेंड ऑन वेक्टर। ओके, ओके सर। so W is a subgroup and alpha W belongs to W for all alpha belongs to F and for all W belongs to W. सर W सब ग्रुप तो तब होगा ना जब मतलब W2 हमारा नेगेटिव भी हो जाए, तो W1 माइनस नेगेटिव होने के W2। लिए ओके, अल्फा इज इक्वल टू -1 पॉसिबल है। यदि अल्फा इज इक्वल टू -1 हो गया, देन -W belongs to W for all W। यदि -1 भी हो सकता है ना? यस सर। तो यहाँ पर फाइनली जो हमारे पास रिजल्ट्स हैं वो क्या है कि इफ W1 W2 belongs to W, then we can write W1 plus -W2, this equal to W1 minus W2 belongs to, this also must be satisfied, right? Otherwise we write in one line what, क्या लिखेंगे बताइए? In one line we write alpha U plus beta V belongs to W for all alpha beta belongs to F and for all U V belongs to W। ये लिख सकते हैं ना? यस सर। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं सब स्पेस के। जैसे फर्स्ट एग्जांपल, R² over R, दिस इज अ वेक्टर स्पेस। ये वेक्टर स्पेस है। यस एक सर। बार लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए। लास्ट स्लाइड, ओके। दिस इज ओनली डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस और लीनियर सबस्पेस, वेक्टर सबस्पेस और लीनियर सबस्पेस। तो R² over R, तो यहाँ पर R² over R है, तो यहाँ पर क्या कंडीशंस होंगी? यहाँ पर किस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे? x1 y1 टाइप्स, ओपन। some different x2 y2, right? So this becomes x1 plus x2, this is a internal composition y1 plus y2, okay? ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए फॉर ऑल x1 y1 and x2 y2। सेकेंड कंडीशन अल्फा x1 and x2 या y2
x1 and y1. So this is equal to alpha of x1 comma alpha of y1 for all alpha belongs to R and x1 y1 x2 y2 belongs to R square. Then we define some subspaces. कुछ subspaces define करते हैं. First W, collection of all those ordered pair xy belongs to V such that x plus y is equal to -1. This is subspace of V or not. This is subspace of V or not. ये क्या सबस्पेस होगा? आर स्क्वायर ओवर आर का? नो सर. नो. कौन सी कंडीशन फेल करेगी? कोई ना कोई कंडीशन फेल करेगी. x प्लस वाई इज इक्वल टू -1. ये हमारे पास क्या है? एक लाइन है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द लाइन ऑफ विच इज x प्लस वाई इज इक्वल टू -1. इस लाइन के सभी पॉइंट्स का कलेक्शन है. यस सर. Zero is not there. Zero is not there. Okay. Because of this line is not passing through origin. ये लाइन हमारे पास जो है, this is not passing through origin. So this is not a subspace. Means we can say zero vector does not belongs in W. Then W is not subspace of V. Right? Second, if we write some W1. सर 0 0 V में है लेकिन W में नहीं, इसीलिए ये वेक्टर स्पेस नहीं होगा ना. Yes. मतलब सब स्पेस नहीं होगा ना. फर्स्ट कंडीशन आइडेंटिटी तो एग्जिस्ट ही करनी चाहिए. जीरो वेक्टर मींस. यस सर. Then W1 collection of all those xy's means ordered pair such that x square plus y square that is equal to 0. This is subspace of V or not? सर इनवर्स सर आइडेंटिटी नहीं है, 1 नहीं है. यस सर. This is सर अगर हम yes, okay. 1 माइनस अगर हम सर 1 - 1 लेंगे r स्क्वायर से तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा. No, we cannot choose from r square. We choose from W1. सर एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा सर. ओके. क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो कोई दो आप एलिमेंट्स बताइए जो जिनका हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी यूज करके मींस इंटरनल कंपोजिशन ऑपरेट करें, बट वो हमारे पास जो रिजल्टेंट मिले वो सेट का एलिमेंट नहीं होना चाहिए. ऐसे कोई दो सर 1 -1 1 और -1 1 एंड -1. सेकेंड, यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है, नॉट ओनली वन एलिमेंट. सर 1 - 1 तो बिलोंग ही नहीं करेगा ना W में. राइट. W में ओनली बिलोंग जो करेगा वो 0 0 होगा, नॉट एनी अदर वेक्टर विच बिलोंग्स इन W1. दिस इज नथिंग बट दिस इज ओनली this is a trivial vector subspace. Notation is different, but this in W1 we have only one element, that is identity 0 and 0. Because of x square is always positive, y square is always positive, the how is possible sum of two squares is 0 if x and y non-zero. This is possible. दो स्क्वायर्स का सम 0 है और वो दोनों वैल्यूज हमारे पास यदि नॉन जीरो है तो क्या उनका सम 0 पॉसिबल है? नो सर. नहीं पॉसिबल. सो वी हैव ओनली वन एलिमेंट दैट इज 0, 0, राइट? So this is always subspace of any vector space. This is a subspace.
तो ये सब स्पेस होगा. Yes, sir. So this is different notation only. This actually this is a trivial subspace. Okay. Another one, W2. Collection of all those x and y belongs to R square such that x plus 3y is equal to 0. This is subspace or not? Yes, sir. Yes or no? No. This is subspace. Yes, sir. Yes, sir. तो इसको प्रूफ करूं या कोई डाउट है किसी को इसमें? किसी को डाउट है? No, sir. This is a subspace. You can prove, right? यहाँ पर 0 0 एग्जिस्ट करेगा फर्स्ट. सेकंड, कोई भी आप x1 प्लस 3y1 एलिमेंट्स W2 से लेंगे, उनका इंटरनल कंपोजिशन करेंगे तब भी इसी में मिलेगा. कोई स्केल का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब भी यही मिलेगी कंडीशन, राइट? कोई अल्फा टाइम x प्लस 3y भी हमारे पास 0 आएगा ना? Yes, sir. Okay, next. Collection of all those x, y belongs to R square, right? Such that mod of x is equal to mod of y. This is a subspace or not? ऑल मीन्स यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, पॉइंट्स कौन कौन से आ रहे हैं? जो x से, या इसका ग्राफ क्या बनेगा बता सकता है कोई? व्हाट इज ग्राफ? सर mod x का ग्राफ? नो, mod x इज इक्वल टू mod ऑफ y. ये एक हमारे पास इक्वेशन है, कोई भी ग्राफ तो होगा ही ना इसका. सर जैसा mod x ग्राफ बनता है वैसा ही बनेगा सर, इक्वली बनेगा. वैसा ही बनेगा? नहीं, इसका बनेगा एक क्रॉस साइन which is Yes, sir. Passing from through origin. origin. One line xy and minus xy. X is equal to minus y या y is equal to minus x, right? इन दोनों लाइंस को कंबाइन करके हमारे पास एक ग्राफ बनेगा ना? ठीक है, क्यों बनेगा? यहाँ पर कोई भी फंक्शन आप लोगों ने ग्राफ पढ़ा होगा. फर्स्ट we remove all these modulus, so we get only y is equal to x. So what is graph? This is graph, right? If we apply mod on x, then we delete this line, then we get this, right? And if we apply mod on y, then we get image on mirror image with x axis, so we get finally the graph. This is a graph, right? तो ये हमारे पास इसका ग्राफ होगा जो W3 लिखा हुआ है मैंने, ठीक है ना? So this is a vector space or not? Yes, sir. ये तो पूरे प्लेन को कंटेन करेगा ना? नहीं, ये पूरे प्लेन को नहीं कंटेन करेगा. ये कंटेन करेगा हमारे पास ये दो लाइंस पर पॉइंट्स होंगे, और ये ओरिजिन से पास हो रही हैं दोनों लाइंस. This contains only points on both lines, y is equal to x and y is equal to minus x, right? इन दोनों लाइंस को कंटेन करेगा, इन दोनों लाइंस पर जो भी पॉइंट्स होंगे. तो दिस इज अ सबस्पेस और नॉट? If you see in this question, so 0 is 0 comma 0 is there or not? It is there, Yes, sir. sir.
this is present. 0, 0 means identity is exist. And now if you see the figure, then you see that there is union of two subspaces, right? Actually union of two lines, union है ना. So we consider a point 1, 1 in W3 and second point 2, 2. Both are in W3, but 1, -1 plus 2, 2 internal composition, that becomes 3, 1. This is not there. So this is not closed under internal composition. ये closed होगा क्या? नो सर, इंटरनल एक्सटर्नल में जब नहीं है सर तो फिर तुम आगे मतलब ये तो वेक्टर स्पेस नहीं बना तो फिर नहीं बना, ये वेक्टर स्पेस नहीं है. ये हमारे पास जो W3 है ये एक्चुअल में है क्या? दिस इज अ यूनियन एक्चुअल में. एक्चुअली दिस इज अ यूनियन. W3 is a union of x, x such that x belongs to real number, right? And union with x, minus x, right? Such that x belongs to real number. इनका यूनियन है ना. Yes, sir. So we know सर union of कैसे हुआ सर? दो लाइंस है ना हमारे पास. ये x, x एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज लाइन, दिस लाइन, दिस इज x, x यानी कि y is ओके equal to सर. x and this second is y is equal to minus x, right? कोई डाउट किसी को? नो सर. Okay, so union of two subspaces is not a subspace. So union of two subspace need not be a subspace. Need not be subspace. बट जो हमारे पास यूनियन लिखा हुआ ये दोनों सबस्पेस है ना. ये दोनों सबस्पेस होंगे. Yes, sir. ये दोनों होंगे. यस सर, ये सर दोनों सब स्पेस होंगे. ओके, ये दोनों हमारे पास सबस्पेस होंगे. तो यहाँ किसी को कोई डाउट है? एक्सक्यूज मी सर. ओके, हाँ बोलिए. सर इससे जो पहले वाला एग्जांपल था W2 वाला सर, अगर उसमें मतलब x प्लस 3y इक्वल टू 0 मतलब हमें पॉइंट्स चाहिए थे. तो सर अगर हम इसके दो पॉइंट्स लें -3, 1. ओके ठीक है. एक मिनट मैं और ओपन कर लेता हूँ लास्ट स्लाइड. हाँ, इसमें आप क्या कह रहे हैं? माइनस सर -3, 1 -3, 1 ठीक है. और 6, -2. 6, -2 राइट. सर अगर हम इनका एक्सटर्नल कंपोजिशन लेते हैं तो सर ये 3, -1 बनेगा जो कि इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा. नहीं सर, नहीं करेगा. नहीं करेगा सर. करेगा ना. ये क्या हाँ हो गया? सर. माइनस टाइम ऑफ जो आपने फर्स्ट लिया था उसी का माइनस टाइम हो गया, राइट? ओके सर. ठीक है, कोई डाउट है इसमें? नो सर. नहीं. ओके, दिस इज में एग्जांपल्स फॉर सब स्पेस.
collection of all diagonal matrix is a vector space? Yes, sir. Because of if we add 2 with respect to addition, right? We define a vector space V is equal to collection of all matrices M, which is n cross n sorry, n cross n matrices, which is diagonal matrix, right? M is diagonal matrix, or we say this is a scalar. Scalar or diagonal, what is different? Both are same or different? Different, sir. Different Difference, because sir. of In The different scalar, diagonal all the matrix. diagonal elements will be same. Yes. So if we consider M is a diagonal matrix, this is a vector space or not? Where field, it's your choice, any field F, right? This is a vector space, F be any field. बताइए पॉसिबल है? तो यहाँ पर देखिए जो हमारे पास जीरो मैट्रिक्स है वो भी एक क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स के में आती है या नहीं आती है? जीरो मैट्रिक्स इज आल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स. yes sir. So there is zero vector, zero belongs to V, means zero this is a n cross n matrix, right? Diagonal तो matrix. सर अगर दो जीरो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो फिर से वो जीरो मैट्रिक्स ही देगा. बट जीरो मैट्रिक्स तो वन ही होगी ना इसमें, जीरो मैट्रिक्स तो यूनिक ही होती है. मतलब सर अगर हम दो मैट्रिक्स ले लेते हैं, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, जो कि दोनों ही जीरो मैट्रिक्स हो, हाँ, और अगर तो दो वो देखिए दोनों आप जीरो ले रहे हैं ए एंड बी, तो वो ए बी यदि दोनों जीरो है तो वो या तो मान सकते हैं कि ये दोनों ए है या दोनों बी है. डिफरेंट तो होंगी नहीं, जीरो मैट्रिक्स का डिफरेंट हो सकती है सेम साइज की, या एन क्रॉस एन हमारे पास 3 क्रॉस 3 की, क्या दो जीरो मैट्रिक्स पॉसिबल है? नो सर. साइज डिफरेंट होगा तो वो डिफरेंट मैट्रिक्स होगी, बट यहाँ पर सभी मैट्रिक्स कलेक्शन है कि हमारे पास एन ऑर्डर की हैं, जो कि एन ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है. तो यदि ए एंड बी बिलोंग्स टू बी मीन्स ए बी डायगोनल होंगी, तो ए प्लस बी भी बिलोंग करेगा या नहीं करेगा? दिस इज ऑल्सो अ डायगोनल, पॉसिबल है ना? Yes, sir. यदि कोई स्केलर का मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा ऑफ ए, दिस ऑल्सो बिलोंग्स, Belongs to V. if alpha belongs to f, right? So this vector V is a vector space or not? यस सर. This is just subspace of any vector space. V is a subspace of all matrices which is n cross n over f. Means we collect a vector space which is collection of all matrices. Then V is a subspace of that vector space. Subspace होगा या नहीं होगा? यस सर, अगर हम कोई दो डायगोनल मैट्रिक्स लेंगे उनका एडिशन फिर से सर इसी सबस्पेस में आ जाएगा. हाँ, तो हमारे पास सभी मैट्रिक्स का यदि कलेक्शन लिया जाए पर्टिकुलर ऑर्डर की, तो वो हमारे पास एक वेक्टर स्पेस होता है, उसका एक ये सब स्पेस होगा डायगोनल मैट्रिक्स का कलेक्शन. एक डिफरेंट सब स्पेस भी हो सकता है इफ वी कंसीडर ऑल दी स्केलर मैट्रिक्स, देन आल्सो अ सब स्पेस. यस सर, तब भी होगा. तब भी होगा ना? यस सर. तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नाउ वन मोर subspace we define a set
or W is equal to collection of all those matrices which is of order n cross n such that trace of m is equal to m11 plus m22, ट्रेस यही होगा ना, एंड सो ऑन m and n, this equal to 0. This is a subspace of collection of all matrices of n cross n over any field f. This is subspace or not? Yes, sir. Subspace. सबस्पेस होगा या नहीं होगा, कोई बताएगा? यस सर, क्योंकि सर इसमें अगर सारे ट्रेस हमारे मतलब सारे डायगोनल एलिमेंट जीरो हो जाते हैं तो जीरो एलिमेंट इसमें बिलोंग कर जाएगा, तो ये ट्रिवियल सबस्पेस बन जाएगा। ट्रिवियल नहीं होगा, दिस इज नॉट ट्रिवियल। ट्रेस यस सर, डायगोनल एलिमेंट 1 और -1, 2 और -2 में भी हो सकते हैं। हाँ, means if trace is zero then matrix is zero, not necessary, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ट्रेस मैट्रिक्स नॉन जीरो भी हो सकती है, तब भी हमारे पास ट्रेस आ सकता है जीरो। मीन्स जैसे यस हमारे सर। पास इफ इवन नंबर ऑर्डर हमारे पास एफ एन इवन हो गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हाफ का सम जो भी होगा वो n/2 का जो सम होगा वो n/2 के इक्वल हो जाए नेगेटिव साइन के साथ, या कोई भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। इफ ये हमारे पास n हमारे पास ऑड आ गया तो एटलीस्ट क्या होगा कि ये एक वैल्यू जीरो आएगी, या नहीं है नेसेसरी, ऐसा भी नेसेसरी नहीं है। ये 3 ऑर्डर की है तो हम ऐसी भी हो सकती है वैल्यूज 3 -1 -2 डायगोनल में। ये सर, अगर हम सर दो मैट्रिसेस लें, ट्रे m प्लस m और हाँ n, और उनको सम करें, ट्रेस लें, तो वो ट्रेस m प्लस ट्रेस n के इक्वल हो जाएगा, जो कि 0 + 0 0 हो जाएगा। हाँ, दिस इज अ सब स्पेस, राइट। तो ये भी हमारे पास एक क्या होगा, सब स्पेस होगा। क्लियर है सभी को? यहाँ किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? बताइए। Please explain this. नेक्स्ट, यदि W कलेक्शन ले लेते हैं, W इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स M of order n cross n, and M is, or we say सिमेट्रिक का डेफिनेशन क्या होता है हमारे पास, ट्रांसपोज ऑफ M is equal to m। M. So this is a subspace of all matrices over a field of order n cross n or not? यस सर, सबस्पेस है। सबस्पेस होगा, बताइए सबस्पेस होगा या नहीं होगा? इसी तरह से यदि कलेक्शन ऑफ ऑल हर्मिशियन मैट्रिसेस ओवर फील्ड C, दिस इज अ सबस्पेस और नॉट? सर एक बार हर्मिशियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन बता दीजिए। ओके, हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, जिसी तरह से यहाँ सिमेट्रिक क्या होती है, फॉर रियल। सेम कंडीशन हमारे पास हर्मिशियन की है, बट वहां पर क्या हो जाता है, आयोटा की जगह माइनस आयोटा भी पुट करते हैं। मीन्स कोई मैट्रिक्स है, पहले यहाँ पर मैं कलेक्शन ले रहा हूँ, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज मैट्रिसेस विद एंट्रीज with we say M belongs to, or we write here n belongs to of M n cross n
ओवर सी, राइट। कोई कॉम्प्लेक्स एंट्रीज की हमारे पास मैट्रिसेस हैं, यहाँ पर n क्या कंडीशन सेटिस्फाइड करेगी, n jk इज इक्वल टू n kj, ये होगा ना कॉम्पोजिशन, सॉरी यहाँ पर ये होगा ना, Yes, sir. ये कंडीशन होती है conjugate हमारे का पास हर्मिशियन की, मींस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। जैसे मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में यहाँ पर एंट्री है जो, ये तो डायगोनल एंट्रीज हो जाएंगी, इसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पर क्या आएगा, सिर्फ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो यहाँ का एलिमेंट्स यहाँ मिलना चाहिए, जो कि और साथ में क्या कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी होना चाहिए। क्लियर है? तो दिस इज आवर सबस्पेस और नॉट ऑफ ऑल मैट्रिसेस n क्रॉस n ओवर C। सबस्पेस होगा या नहीं होगा? मतलब सर हर्मिशियन मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर में डिफाइन होता है। यस, सेम कंडीशन होती है। हर्मिशियन जो होता है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स में होता है, और स्क्यू जो हमारे पास, सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है वो रियल में डिफाइन होता है। जो हमारे पास रियल में डिफाइन होता है उसको भी हर्मिशियन की तरह से कंडीशन से करेंगे तब भी हमारे पास वही आएगी मैट्रिक्स जो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, क्योंकि वहां पर कॉन्जुगेट्स करेंगे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो रियल नंबर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट तो उसके इक्वल ही आएगा ना। यस सर। सेम कंडीशन सेटिस्फाइड करेगी, जो हर्मिशियन की कंडीशन है वही सिमेट्रिक की कंडीशन सेटिस्फाइड कर जाएगी कि नहीं। कॉन्जुगेट भी ले लेंगे तब भी हमारे पास कोई चेंज नहीं आएगा सिमेट्रिक की कंडीशन में, रियल की है मैट्रिक्स। यस सर। यहाँ पर आर कर लेते हैं, तो इसका आंसर बताइए, दिस इज सब स्पेस और नॉट। Set of all Hermitian matrices is subspace of all complex matrices. This is true or false? True, sir. True. 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 सभी का true है आंसर? All of you says true, or anyone have answer different? First condition, zero matrix is also Hermitian matrix. Yes, sir. 0 0 all. If we consider all real matrix, then this by default set of all real matrices is also a Hermitian matrix. If we consider all the real symmetric matrix, sorry, if we consider all this real symmetric matrix, that is also a Hermitian. So zero matrix is also a Hermitian matrix. Now we consider a matrix A, right? A is Hermitian, means A belongs to W. A कोई मैट्रिक्स है जो कि हर्मिशियन है और ये W में बिलोंग कर रही है, एंड इट्स डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एंट्रीज A11, A22 and so on up to ANN. This is real. Possible or not? This is Hermitian. सर अगर हमारा जो स्क्यू मैट्रिक्स है वो सबस्पेस बना रहा है तो सर हर्मिशियन मैट्रिक्स तो मोर जनरल केस हो गया ना। हम नहीं, वो बना रहा है वो ठीक है, वो डिफाइन हमारे पास R पर है, मोस्ट जनरल फॉर्म है, बट ये चेक करना होगा ये बना रहा है या नहीं बना रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा ये नहीं बनाएगा, एक्चुअल में मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से नहीं बनाएगा, कि A है ये फॉल्स है स्टेटमेंट, ठीक है ना। यहाँ पर A आप हर्मिशियन मैट्रिक्स कंसीडर कीजिए जिसकी डायगोनल एंट्रीज क्या है, रियल है। पॉसिबल है ना ऐसा? सर उस केस में तो फिर वो स्क्यू मैट्रिक्स ही बन जाएगी।
नहीं, केवल डायगोनल एंट्रीज पर कंडीशन लगाई है मैंने। नॉन डायगोनल ओके एंट्री में एलिमेंट्स कोई भी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, ठीक है, नॉन डायगोनल कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। सर हर्मिशियन केस में डायगोनल तो ऑलवेज रियल ही होगी ना? हाँ रियल होगी, तभी तो बोल रहे हैं। तो यस। यहाँ पर ऐसी मैट्रिक्स मिल जाएंगी ना जिसमें अदर एलिमेंट रियल नॉन रियल कोई भी हो, उससे कोई इशू नहीं है। डायगोनल एंट्री में हमारे पास क्या होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद बट जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज ऑफ आयोटा ए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कॉम्प्लेक्स में स्केलर है ना एक आयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्रोडक्ट कर देंगे तो ये क्या हमारे Yes. पास हर्मिशियन आएगी, आएगी नहीं होगा। नहीं होगा। क्लियर है सभी को। डायगोनल एंट्री में ऑफ आयोटा ए इज नॉट रियल, आर इन जनरल नॉट रियल, तो ये नहीं होगा ना। Yes, sir. बट यहीं पर मतलब हाँ बोलिए, एक्सटर्नल कंपोजिशन फेलियर हो रहा है सर। डिफाइन नहीं हो रहा है, एक्सटर्नल कंपोजिशन फेल हो रहा है। बट यहाँ पर कंडीशन मैं यूज करूं कि जो जिस फील्ड पर डिफाइन है एक्चुअल में, वो फील्ड में रियल कंसीडर कर लूं। मैट्रिक्स हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनी रहे, कोई इशू नहीं है, बट वहां पर फील्ड क्या कर लें, रियल कंसीडर कर लें, तो ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि वहां आपको आयोटा नहीं मिलेगा, राइट। यस सर। यस सर। क्लियर है। यदि कॉम्प्लेक्स फील्ड है तो ये फॉल्स होगा यदि हम यहाँ पर रियल फील्ड कंसीडर कर लें, इफ f is equal to real numbers then this is a subspace, होगा ना। यस यस। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? एनीबॉडी हैव डाउट? नो क्लियर हो गया ना। हर्मिशियन कॉम्प्लेक्स में नहीं बनाएगा ओवर कॉम्प्लेक्स फील्ड, बट ओवर रियल फील्ड दिस इज अ सब स्पेस। और एग्जांपल करें क्या? यस सर। नेक्स्ट यदि W1 W2 two subspaces then union is subspace or not, when union is subspace, same condition of union of subgroups। सर If यूनियन one जब is एक दूसरे को contained, कंटेन करेगा तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हाँ, if W1 and W2 be two subspaces of V over F, then W1 union W2 is subspace if and only if, या implied by W1 contained in W2 or W2 contained in W1, इनमें से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। क्लियर है ना। सर ये तो वही है ना, मतलब ग्रुप में भी एक कंडीशन होती है कि मतलब यूनियन सब ग्रुप तब होगा जब एक दूसरे में कंटेनमेंट होगी। हाँ ये तभी पॉसिबल होगा। ये तभी पॉसिबल होगा जब ये कंटेंट होंगे, कोई एक कंटेंट होना चाहिए। इसका प्रूफ पता होगा ना सभी को कि ऐसा क्यों नहीं पॉसिबल होता है। या बताएं? बता दीजिए सर एक बार। ओके, तो यहाँ पर हम इसका कंट्राडिक्शन कंसीडर करके चलते हैं कि डब्ल्यू, एक केस ले रहा हूं मैं, W1 नॉट कंटेंट इन W2, इनमें से कोई एक केस कंसीडर कर लेते हैं। तो
एक मिनट। तो यदि W1 not in contained, let if ये इसका कंट्राडिक्शन पॉसिबल है क्या? इफ पॉसिबल, W1 not a subset of W2 or contained, not contained in W2. So if we have a vector W1 which belongs W1 minus W2, ठीक है ना? ऐसा कोई मैंने वेक्टर लिया, यहां पर मैंने स्टार्ट में क्या कंडीशन ली है कि W1 नॉट कंटेन इन W2, तो ऐसा कोई ना कोई वेक्टर है एटलीस्ट वन एग्जिस्ट करेगा जो कि W1 का तो होगा बट W2 का नहीं होगा। क्लियर है? एंड कोई दूसरा हम एक ले रहे हैं W2 विच बिलोंग्स W2। क्लियर है यहां तक? बट W1 प्लस W2 वेक्टर्स बिलोंग्स इन यूनियन, यूनियन में बिलोंग करेंगे ना? यूनियन में बिलोंग करेंगे। यस सर। नाउ W1 प्लस W2, W1 अगर यूनियन में बिलोंग कर रहा है तो W1 प्लस W2 आइदर बिलोंग्स W1 और W1 प्लस W2 बिलोंग्स W2। किसी एक में तो यूनियन इनका बिलोंग कर जाए, सॉरी इन दोनों का सम बिलोंग करेगा ना? यस यस सर। तो करेगा बिलोंग, तो यहाँ पर क्या है इसका पॉसिबिलिटी क्या है? कि इसका ये मतलब जो सर कि W1 और W2, W1 भी W1 में बिलोंग कर रहा है और W2 भी बिलोंग कर रहा है, ये अप्लाई कर देगा ना, क्योंकि W1 तो ऑलरेडी बिलोंग कर रहा है। और क्या पॉसिबल है एयर कंडीशन की W2 ऑलरेडी हमने कंसीडर किया W2 में बिलोंग कर रहा है, दैट मींस W1 भी हमारे पास W2 में बिलोंग कर गया, तो ये कंट्राडिक्ट कर रहा है, जबकि ऐसा कंसीडर किया था ये नहीं है, दोनों डिफरेंट है। पॉसिबल है क्या? ये कंट्राडिक्शन है, बताइए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, हेंस W1 contained in W2, either W2 contained in W1। क्लियर है सभी को? यहाँ तक कोई डाउट है? क्वेश्चंस आया हुआ है क्या? डिटरमिनेंट्स पे बेस पे इजी क्वेश्चन है। A matrix M of 2 cross 2 with M be a matrix of order 2 cross 2 and satisfy determinants of M plus identity matrix, this is equal to 1 plus determinants of M, then which of the following is true? First, determinants of M must be 0. Second, M is 0. Third, determinants is non-zero. और वैसे determinants of M non-zero. D, trace of M 0। बताइए which option is true?
Trace of m is equal to 0. Okay. Any other option is true? Option D, sir. Option D. This is always true, right? This is always true. Yes, sir. Because of if we consider m is equal to some matrix x y z w, राइट? ये कोई मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर जो कंडीशन हमारे पास गिवन है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? डिटर्मिनेंट्स ऑफ m, m क्या है? x y z w प्लस आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या है? 1 0 0 1, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ m क्या होगा? 1 प्लस एक्स डब्ल्यू माइनस वाई जेड, यही तो होगा ना? तो यहां पर इनका एडिशन करेंगे तो क्या आएगा? एक्स प्लस वन वाई जेड डब्ल्यू प्लस वन। तो यहां पर हमारे पास इसका डिटरमिनेंट्स क्या आ जाएगा? दैट डिटरमिनेंट्स इज एक्स प्लस वन प्रोडक्ट विद डब्ल्यू प्लस वन माइनस जेड वाई या वाई जेड, राइट? यही तो होगा। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स डब्ल्यू माइनस वाई जेड। तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, वाई जेड प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 1 प्लस एक्स डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस डब्ल्यू, यही तो आएगा ना? तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या आया? दिस इंप्लाइज दैट एक्स प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस डब्ल्यू क्या है? एक्चुअली एक्स प्लस डब्ल्यू इज ट्रेस ऑफ एम। Trace. इन जनरल दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये ट्रू होगा ना? किसी को कोई डाउट है? नो। अब यहाँ पर हम कुछ स्टैंडर्ड, जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में 5 वेक्टर स्पेसेस डिफाइन किए थे। कौन कौन से डिफाइन किए थे? फर्स्ट इज n tuple वेक्टर स्पेस, राइट? सेकेंड इज पॉलिनोमियल, थर्ड इज मैट्रिसेस, फोर्थ इज फंक्शंस, फिफ्थ इज सीक्वेंसेस। यही तो किए थे ना? Yes, sir. इनके सब स्पेसेस कुछ लिखते हैं, इनके सब स्पेसेस पॉसिबल होंगे ना? तो यहां पर देखिएगा कि फर्स्ट हम कंसीडर कर रहे हैं एक वेक्टर है, वेक्टर स्पेस V इज इक्वल टू, ये क्या है? n टपल है, मींस a1 a2 अप टू an, सच दैट ai बिलोंग्स टू f ओवर एनी फील्ड। ये कोई भी फील्ड होगी, f हमारे पास क्या है? एक फील्ड है। एंड w इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल x बिलोंग्स टू v, राइट? एंड यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या है? सच दैट x इज इक्वल टू a1 a2 एंड सो ऑन अप टू an एंड सम कंडीशन। यहाँ पर कंडीशन सब डिफाइन कर रहे हैं। फर्स्ट, यहाँ पर कंडीशन यदि गिवन है साथ में, समेशन ऑफ ऑल ai मस्ट बी 0, दिस इज अ सबस्पेस और नॉट? दिस इज अ सबस्पेस। This is similar as we define a vector space of all matrices, then define a subspace of in which trace is 0. So we define a mapping from that to this vector space.
we define a mapping or transformation from all matrices to trace. Trace means trace क्या आएगा हमारे पास? This is a n-double vector space. कलेक्शन ऑफ ट्रेसेस, सभी मैट्रिक्स के ट्रेसेस का कलेक्शन कर लिया जाए, होगा ना? सर ये समझ में नहीं है, दोबारा बताना। मींस वी हैव अ कलेक्शन ऑफ ऑल मैट्रिसेस, एक मैट्रिसेस का मैंने कलेक्शन लिया, राइट? वेक्टर स्पेस है ना, कलेक्शन ऑफ ऑल मैट्रिसेस। यस सर। वी कलेक्शन ऑफ ऑल मैट्रिसेस यानी कि m n क्रॉस n ओवर f सम फील्ड, ठीक है? देन वी डिफाइन अ फंक्शन फ्रॉम दिस टू अ v इन विच वी कलेक्ट ओनली ट्रेस। यहाँ पर करते हैं क्या, m11 m22 एंड सो ऑन mnn। ये यहाँ पर मैपिंग डिफाइन कर सकते हैं, ट्रेस पर मैप करा रहे सभी को, ट्रेस पर मैप करा रहे, मैपिंग पॉसिबल है? बताइए। एक फंक्शन है f which defined from a matrix to that trace, ट्रेस को एंड टपल्स में लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आया सभी को? कोई डाउट है बताइए इसमें? तो इसका एक सब स्पेस है कि समेशन ऑफ ऑल डायगोनल एंट्रीज और ट्रेस ऑफ m इज इक्वल टू 0। तो वही तो कंडीशन मैं इधर लगा रहा हूँ, समेशन ऑफ जो ai's बना रहे हैं 0, इसी तरह से इसमें कंडीशन अप्लाई की है ना। तो ये भी एक क्या होगा, सब स्पेस होगा या नहीं होगा? नहीं समझ में आया? सर मैपिंग के बाद ऑल जीरो पॉसिबल हो सकता है? ऑल जीरो पॉसिबल हो सकता है, ओके। कि सर अगर हम अल्टरनेट प्लस करें तो वो जीरो दे देगा कि A1 A3 का सम जीरो हो जाएगा, A2 A4 का सम जीरो हो जाएगा। A1 का यानी कि कोई भी ऑड को ऐड कर दीजिए, A1 से A3, A1 से A5, ठीक है ना, या A3 से A5, ये जीरो हो जाएंगे। A2 से A4, A4 से A6 या A2 से A6, ये जीरो हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, जैसे मैंने A1 को 1 ले लिया, ठीक है ना, और A2 को कुछ ले लीजिए, उसी के बेस पर सब मिल जाएंगे। A2 को 1 ले लिया, देखिए दो पॉसिबिलिटी हम यहाँ पर बेसिस लिखना चाह रहे हैं कि A1 को 1 लिखा और A2 को 0 लिखा, तो अदर एलिमेंट्स उसी के बेस पर आ जाएंगे। A3 क्या आ जाएगा, -1, A4 0 रहेगा, A5 क्या आएगा, अब बताइए। यस सर, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगी फिर बात। कॉन्ट्राडिक्ट So करेगी only कंडीशन, कॉन्ट्राडिक्ट करेगी। हाँ सर, 1 भी नहीं ले सकते, -1 भी नहीं ले सकते। तो ये सब स्पेस बनाएगा। वन नहीं ले सकते, -1 नहीं ले सकते, क्या क्या ले सकते हैं यहाँ पर, पॉसिबल है कोई? नहीं सर। तो ये तो नहीं बनाएगा ना, ऐसा कोई एलिमेंट मिलेगा क्या? सर -3 अगर ले ले तो -3 नहीं, A3 और A5 हमारे पास का सब जीरो ओके होना चाहिए। ये सर तो यहाँ पर दो ही चॉइसेस हैं, 1 और -1 या 0। मैंने यहाँ पर चॉइसेस ज्यादा नहीं रखी, बट यदि A1 के अकॉर्डिंग देखें तो -1 आएगा, तो फिर A3 प्लस A5 0 नहीं होगा। यदि 1 ले लिया तो A3 प्लस A5 तो 0 हो जाएगा, बट A1 नहीं होगा। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर सिर्फ 0 वेक्टर ही मिला, 0 ही मिला ना। यस सर। तो वो सब स्पेस बनाएगा या नहीं बनाएगा? नहीं बनाएगा सर। नहीं बनाएगा, ओनली 0 वेक्टर मिल रहा है, तब नहीं बनाएगा। ये सर बनाएगा, बनाएगा सर, बनाएगा ना? ट्रिवियल हो गया। ये एक्चुअल में ट्रिवियल हो गया, बन जाएगा ना, बनेगा बनेगा बन जाएगा। तो ये एक सब स्पेस होगा। तो किसी को कोई डाउट है इसमें?
Next, summation of all AR is equal to 0 where R is equal to 1 to K. Some K terms in which K is from 1 to N, strictly less than N, and AR is equal to 0 whenever R is greater than K. This is subspace or not? ये एक्चुअल में क्या हो गया हमारे पास, ये फर्स्ट और सेकंड जो हम लोगों ने लिखे हुए हैं ना दो, एक इवेंचुअली 0 एक समेशन 0, उन दोनों को कंबाइंड किया गया है ना. This is combination of first and second. Yes, sir. Because of eventually 0 means after K terms this is 0, and for K terms this is summation is 0. Is combination of first and second. This is subspace or not? सर ये भी कह सकते हैं कि जो हमने फर्स्ट सबस्पेस लिया और दूसरा सबस्पेस लिया उसका यूनियन है. This is union. No. How is possible this is union? नहीं सर, यूनियन नहीं है, सबस्पेस होगा सर. ये this is subspace of first and second both, right? Yes sir. Because of, if we consider summation AI is equal to 0, then this is ninth is subspace of first and ninth is subspace of also second, right? इन दोनों का सबस्पेस होगा ना. Yes sir. तो W का भी सबस्पेस होगा. सबस्पेस होगा ना. Yes sir. ओके. तो इस तरह से हमारे पास कुछ ये सबस्पेसेस पॉसिबल्स हैं, पॉसिबल है ना. सर ये सबस्पेस होगा. सबस्पेस होगा. और भी कोई सबस्पेस बता सकते हैं आप? इन जनरल आपको इसी तरह से क्वेश्चंस मिलते हैं, जब भी मिलेगा इसमें एन टपल्स में या और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है. मेजरली आपको इसी टाइप के मिल सकते हैं, अभी तक मिले होंगे. और कोई मिला है? या आपको मिल जाता है कुछ टर्म्स का सम इज इक्वल टू सम कांस्टेंट 0 एनीथिंग, कुछ फाइनाइट टर्म्स, ऐसा भी मिलता है ना. Yes sir. तो वो भी एक क्या होगा, सब स्पेस लाइक we have a 10th sum R is equal to 1 to K, AR is equal to some constant C, constant and same condition. This is also a subspace. ये भी सबस्पेस होगा. यस हाँ सर, ये भी एक सबस्पेस होगा क्योंकि C प्लस C हो जाएगा अगर हम सम करेंगे तो 2C फिर से अगेन कांस्टेंट ही आएगा. हाँ नहीं, कांस्टेंट एक फिक्स है. सर इस टाइप के क्वेश्चन में ट्रिवियल सबस्पेस तो ऑलवेज होगा. इसमें अगर क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है तो ये पूछा जा सकता है कि नॉन ट्रिवियल होगा या नहीं. हाँ, दिस इज अ नॉन ट्रिवियल सबस्पेस और नॉट. और ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि ये सबस्पेस होगा ही नहीं, इसको हो सकता है कुछ और यानी कि कॉम्बिनेशन कर लें. यहाँ पर जैसे मैंने फर्स्ट सेकंड को कंबाइन करके नाइन्थ बनाया, ऐसे और भी कंबाइन कर किया जा सकता है. पॉसिबल है कि नहीं है, पॉसिबिलिटी पूछ सकते हैं ना, दिस सबस्पेस और नॉट. ऐसा आ सकता है. तो समझ में आ रहा है ना सभी को? ऑल ऑफ यू Yes. अंडरस्टैंड और नॉट? Yes, sir. We continue the class or end the class today?
इंटरेस्टेड है आगे और करें? नेक्स्ट सर क्योंकि आज हमने के जो लिए हाँ क्या बोल रहे थे बोलिएगा। सर आज के लिए इतना ही ठीक है। आज इतने ही रखें। आज की क्लास फिर यहीं तक रखते हैं। फिर इसके आगे हमारे पास और जो 4 वेक्टर स्पेस हैं उनको कल कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कल देखिएगा, पहले आपको बता दें कि कल जो क्लास होने वाली है वो ओडी की क्लास होगी, राइट।